علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے تاندیا والا کے تھانہ گڑھ فتح شاہ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اس موقع پر ایس پی صدر ڈویژن فیصل آباد اور ایس ایچ او گڑھ فتح شاہ عثمان خان لاشاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ علی حسن صابری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے تھانہ گڑھ فتح شاہ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ایس پی صدر ڈویژن اور ایس ایچ او تھانہ گڑھ عثمان خان لشاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سٹی پولیس افیسر نے دوران وزٹ تھانہ کی بلڈنگ، فرنٹ ڈیسک، مال خانہ اور حوالات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پولیس چیف کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں دی گئی ٹائم لائن کے اندر ایف آئی آر کا اندراج یقینی بنایا جائے۔ سٹی پولیس افیسر کا زیر تفتیش مقدمات کو بھی جلد از جلد میرٹ پر یکسو کرنے کا حکم۔ تھانہ کی حوالات کا جائزہ لیا اور تھانہ کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کی ہدایات دیں۔ تھانہ کے علاقہ میں گشت اور ناکہ بندی کے نظام کو مؤثر بنائیں، شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ سی پی او فیصل آباد کا کہنا تھا کہ سائلین کو درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن صابری، NTN نیوز، فیصل آباد۔ سیالکوٹ تھانہ مراد پورہ پولیس نے معاشرے کا سکون تباہ کرنے والے افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے ہوئے راہگیری اور ڈکیتی کرنے والے گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ قبضے سے نقدی اور دیگر مال مسروقہ گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک علی سے۔ جی ملک علی، آگاہ کیجیے گا۔ سی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او مرادپور اکرم شباد نے کی بڑی کارروائی۔ میرے ساتھ اس وقت ایڈیشنل ایس ایچ او غازی اس موجودہ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے 13 عدد موٹر سائیکلیں، 16 لاکھ روپے نقدی اور 4 عدد 30 بور پسٹل کس طرح ملزمان کو گرفتار کیا جدید ترین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے؟ جی ملزمان 4 کا سٹریس کیے تھے۔ انہوں نے ہمارے علاقہ تھانہ مرادپور میں واردات کی تھی۔ دن دیہڑے انہوں نے ایک بندے سے 10 لاکھ روپیہ چھینا جو منڈی سے آ رہا تھا۔ 10 لاکھ روپیہ چھین کے یہ 3 آدمی یہاں سے فرار ہو گئے۔ جو واردات کرانے والا تھا وہ ان کا سرگناہ تھا، وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا۔ وہ ابھی پابند سالہ کروا دی ہیں جی۔ ان سے 16 لاکھ روپے کے قریب جو مختلف واردات میں چھینے گئے پیسے تھے وہ برآمد ہوئے، اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ موٹر سائیکلیں اور جو ان کے زیر استعمال اسلحہ تھا وہ بھی برآمد کر لیا جی۔ اچھا سر، میں یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے ذرائع تھے کہ کسی مخبر کی اطلاعات ہیں؟ یہ جی ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سیف سٹی کے کیمرے سہولت ملی تھی ہمیں، اس کے تھرو ہم نے ان کو جو اپنے کیفے کردار تک پہنچایا جی۔ سیالکوٹ فیصل شہزاد صاحب کی جانب سے آپ کو کوئی اپریسیشن؟ بالکل جی، انہوں نے اپریشیٹ کیا جی اس گینگ کو ٹریس کرنے کے معاملے میں۔ جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی جانب سے ہماری ٹیم کو اپریسیشن دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور جو بھی کوئی ہمارے علاقہ کے اندر قانون کی وائلیشن کرتا ہوا نظر آیا تو پولیس اسے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی جی۔ آپ کو بتائیں کہ توسا اور گرد نواح میں ایڈز جیسے موذی مرض کے پھیلاؤ کی خبریں سامنے آنے لگی۔ متاثرہ بچی کے والد نے NTN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے توسا اسپتال کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنا موقف بھی پیش کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سہیل شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، توسا اور گرد و نواح میں ایڈز جیسے موذی مرض کے پھیلاؤ کی خبریں سامنے آنے کے بعد متاثرہ بچی کے والد نے ڈسٹرکٹ ہسپتال توسا کو مورد الزام ٹھہرایا، جبکہ ہسپتال انتظامیہ نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا۔ میں شاہد منظور، میری بیٹی ام ہانی جو کہ 3.5 سال دی ہے، اندے وچ HIV پازیٹیو آ گیا، جڑا کہ توسا دے وچ ان ٹائم HIV وبا دی شکل اختیار کر گئی ہے، اور ان دی ریزن ایک ہی ہے بالیں دے وچ کہ بار بار سرنجز دا استعمال، اور پہلے دی THQ ہسپتال توسا دے وچ آیا سے آج نے 5 مہینے پہلے اتنا ایک رات سے ایڈمٹ رہا سے ان دوران مسئلہ بنے سے۔ اچھا، جو ریسنٹلی ابھی ایک کون سا تحصیل میں معاملے نے ہائی پکڑی ہوئی ہے جو HIV یا ایڈز کے کیسز کے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد ہم نے ایک اسکریننگ عمل سٹارٹ کیا تھا۔ اب اس اسکریننگ کے عمل کو جیسے ہی ہم نے شروع کیا ہے تو اس کے اندر کچھ تعداد میں بچے اس کے اندر سامنے آئے ہیں، جس میں سے کچھ کنفرم کیسز آئے تھے، کچھ کا پھر اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ ابھی سسپیکٹڈ کیسز ہیں، ان کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی۔ اب جو کٹ کے ذریعے یہ کوئی ریلائبل نہیں ہوتا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں، سسپیکٹڈ کے اس میں شبہ ہے ہمیں، اب اس کا جو فائنل ہے اس میں وہ پازیٹیو فالس نیگیٹو، مطلب ایک جو چیز نیگیٹو ہوتی ہے یا اس میں نہیں ہوتا وہ اس کو پازیٹیو بتا دیتے ہیں، ایک چیز پازیٹیو ہوتی ہے اس کو بھی وہ نیگیٹو بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ان کی پراپر چیک اپ
चेक करके लेबॉर्ट्रीज को उसमें एक मुस्तनद जो किट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएं ताकि आवाम के अंदर इसको रोका जा सके। अस्पताल में हमारे पास ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनी हुई है, हम मंथली बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है वो सर्वेलेंस में रहती है, प्रॉपर सर्वेलेंस होती है। जहाँ पे भी हमें कोई मसला नजर आता है हम फौरन फौरी एक्शन लेते हैं उसको। सराय के मुताबिक तौसा की निजी लेबॉर्ट्रीज के नतायज भी मशकूक करार दिए जा रहे हैं, जबकि अवाम में आगाही मुहिम भी वक्त की अहम जरूरत है ताकि लोगों में पाई जाने वाली तशवीश को कम किया जा सके। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज, तौसा शरीफ। टोबरटेक से खबर शामिल करेंगे, जहां मुस्तहिक खानदानों में रमजान पैकेज के तहत रकम की फराहमी शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर खुल्ड फील्ड में मौजूद, सख्त निगरानी जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार सिद्धू। टोबा टेक सिंह वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान निगरान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों में रकम की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु फील्ड में मुतहरक हैं और खुद मुस्तहिकीन को पे आर्डर तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने तहसील गोजरा और टोबा टेक सिंह के दही इलाकों का विजिट किया, फील्ड टीमों की कारकर्दगी और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा अली समीर और चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल अनवर बेग सियाल भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर टोबा अली समीर ने कहा कि रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को शफाफ तरीके से इमदाद दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो रमज़ान निगहबान पैकेज है इसकी तरसील का अमल जारी। इसमें 22,786 के करीब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनको जो है तहसील टोबा के अंदर जो है वो ये चेक वसूल होंगे। तो इसमें से अभी तक हमारे पास जो लोड आई है वो अभी तक 10,000 चेक्स की आई है और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी टीम्स के ज़रिए वो तरसील का अमल कर दिया और 8,500 के करीब जो है वो हमारे ये तकसीम हो चुके हैं। रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों तक इमदादी रकम की बरवक्त और शफाफ फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत पंजाब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आवाम से अपील की गई है कि किसी भी टीम मेंबर को पे आर्डर के एवज रकम ना दें और शिकायत की सूरत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट करें। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पे कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी। जिला चनियोट में तकरीबन 41,000 के करीब मुस्तहिक अफराद में निगहबान रमजान पैकेज तकसीम किया जाएगा और आवाम की सहूलियात के लिए हर यूनियन काउंसिल में काउंटर कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे कैसर विंस। मौजूद चनियोट टीम हॉल के अंदर जहां पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जो है रमजान निगहबान पैकेज का अंदराज किया गया था, उसके बाद जो है अब तकसीम का सिलसिला वो बिल्कुल जारी है। जबकि चनियोट की अगर बात की जाए, चनियोट के अंदर तकरीबन 41,000 के अंदर मुस्तकीम अफराद को जो है यहाँ पे निगहबान रमजान पैकेज जो है उसका जो है चेक दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है तकरीबन तमाम तर यूनियन काउंसिल के अंदर जो है यहाँ पे अलग-अलग काउंटर भी कायम किए गए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, रमजान निगहबान पैकेज के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये चेक हो गया माशाल्लाह, ठीक है, तो माशाल्लाह ये ना 1 महीना गुजर जाएगा आराम से इजीली। ये माशाल्लाह उसका अच्छा जो है ना सिलसिला जो उन्होंने बनाया, बिल्कुल साफ सफाई से दे रहे हैं, कोई दुश्मन नहीं, कोई भी कंप्लेन नहीं किसी किस्म की। मरीम नवाज का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो आप मरीम नवाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ कि हम गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ठीक है, हमारा इस माह में गुजारा नहीं होता, लेकिन ये आपने अच्छा किया हमारे लिए, महीना आराम से गुजर जाए। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हुकूमत वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो है बेहतर इकदाम किए गए हैं। जबकि चनियोट के अंदर तकरीबन 41,000 के अंदर जो मुस्तकीम अफराद को जो है यहाँ पे चेक तकसीम किए जाएंगे। साथ साथ जो है 39 यूनियन काउंसिल के अंदर तकरीबन हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक अलग जो है सेंटर कायम किया गया, जहाँ से जो मुस्तकीम अफराद जो है अपने चेक वसूल करेंगे। और शहरी ने हुकूमत वक्त मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और अपील की है कि इसी तरह जो है मुस्तकीम अफराद के लिए जो है वो इक़दाम जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में ममनू गैर मयारी अशिया की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का शिकंजा मजीद सख्त हो चुका है। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुख्तलिफ दुकानों से गैर मयारी और ममनू अशिया को कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ पंजाब फूड अथॉरिटी शहजाद मगसी की टीम के हमरा GT रोड सिनामा, ममला चौक, कचहरी चौक, मुजफ्फरगढ़ में 2 मारूफ फूड पॉइंट्स, ड्रिंक कार्नर और बेकरी की इंस्पेक्शन की गई। ममनुआ गुटखा, चाइना नमक रखने पर डिस्ट्रीब्यूटर और ड्रिंक कार्नर को 70,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। इसके अलावा खानों की तैयारों में मुज़र सिहत आयल का इस्तेमाल करने पर बेकरी मारूफ फूड पॉइंट को 55,000 रुपए के जुर्माने भी आयद
عائد کیے گئے۔ گٹکا، چینہ نمک اور ناقص خوراک موقع پر ضائع کر دی گئی۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل گٹکے کے استعمال سے گریز کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماہ مبارک میں صحت دشمن عناصر کو نکیل ڈالنے کے لیے تمام فوڈ پوائنٹ کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سجاد اسلم، NTN نیوز، مظفر گڑھ۔ عارف والا میں روز بروز بڑھتی مہنگائی سے متوسط طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کے باعث شہری پھلوں سے محروم ہونے لگے۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمیر حسن۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ماہ سیام کا آغاز ہوتے ہی ہے جو فروٹ مافیا جو بے لگام ہو گیا ہے۔ فروٹ کی قیمتوں میں جب سے یہ ماہ رمضان کا آغاز ہوا ہے تب سے جو فروٹ کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس میں کھجور ہے۔ رمضان سے پہلے جو کھجور تھی وہ 400 والی اب وہ 500-600 روپے کی ہے۔ جو 600 روپے میں کلو تھی وہ اب جو ہے 1000-1200 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالہ سے کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ فروٹ کو خریدنا تو دور کی بات ہے کہ ہاتھ لگانے کو بھی دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا کہ اتنا مہنگا ہے۔ سب سے پہلے تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ کم سے کم غریب آدمی کو فروٹ کھانے کی جو ہے وہ تو وہ پہنچ میں ہو نا، تو اگر نہیں ہو سکتا تو پھر عوام سے یہ التجا ہے کہ خریدنا چھوڑ دیں۔ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ابھی کتنے روزے گئے تھے ابھی تک ہم نے فروٹ نہیں کھایا، بس کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو مہربانی ہے گورنمنٹ پنجاب کی کہ کم سے کم فروٹ کی قیمتیں کم کی جائے گی۔ میرے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے کہ سبھی بھائیوں کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور واحد فروٹ ایک ایسی چیز ہے جو افطاری کے ٹائم زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور فروٹ کی قیمتیں جو رمضان سے پہلے تھیں وہ بہت کم تھیں، اور اب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور فروٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ آسمان کو بلندیوں میں چھو رہی ہیں، اور فروٹ ہر غریب جو عوام ہے وہ کھانا چاہتی ہے، فروٹ نہیں خرید ہو رہا کسی سے بھی، اور ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ جو فروٹ کو ریٹ کو کم کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی، شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ حکومتیں وقت اس پر نوٹس لیں اور فروٹ کی قیمتوں کو کم کروائیں تاکہ غریب آدمی بآسانی اس کو خرید سکے۔ جی جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ ماہ رمضان میں شہریوں کو تحفظ دینے اور پولیس فورس کو ٹیم ورک کا احساس دلانے کا مشن۔ ڈی پی او مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد خان کی ہدایت پر پولیس اہلکار شہریوں کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر معمور۔ پولیس اہلکار افطار شہریوں کے ساتھ کرنے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی پور سے حماد رضا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کے احکامات پر ماہ رمضان المبارک میں شہریوں کو تحفظ دینے اور پولیس فورس کو ٹیم ورک کا احساس دلانے کے مشن میں تحصیل علی پور سمیت ضلع مظفر گڑھ کے پولیس افسران اپنے پولیس اہلکاران کے ساتھ ڈیوٹی کی جگہ پر افطاری کرتے ہیں۔ یہ اقدام رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوگ افطاری کے وقت جب گھروں اور مسجدوں کو لوٹتے ہیں انہیں محفوظ بنانے اور شہر کی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، جس سے اہلکاران کی افسران کے ساتھ دلی ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ ڈی پی مظفر گڑھ رضوان احمد خود کھلی کچہری ہو یا پھر سرپرائز وزٹ، شہریوں اور پولیس اہلکاران کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈی پی او رضوان احمد نے بتایا، اور میری ساری ٹیم یہاں جمع ہے اور ہم سارے کے سارے ساتھ افطاری کر رہے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ ہم افطاری سے پہلے، افطاری کے دوران اور افطاری کے بعد اپنے شہریوں کو محفوظ رکھیں گے، ان کے لیے وہ ماحول بنائیں گے جس سے وہ محفوظ رہیں۔ اس سے ہمیں ایک یکجہتی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں تو تمام چیزیں بھی ڈسکس ہو جاتی ہیں اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ضلع بھر میں 20 سے زائد تھانہ جات کے افسران جب اپنے اہلکاران اور شہریوں کے درمیان روزہ افطار کرتے ہیں تو پولیس اور عوام میں اپنائیت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد رضا، NTN نیوز، علی پور۔ رخ کرتے ہیں احمد پور سیال کا، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نگہبان رمضان راشن پیکج کے پے آرڈرز کی تقسیم کے لیے حکومت کا نیا اقدام۔ پے آرڈرز کی تقسیم کی ذمہ داری اساتذہ کو سونپ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ملک حفیظ الرحمان کھوکر اپنے اس رپورٹ میں۔
अहमदपुर सियाल में वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमजान राशन पैकेज के तहत मुस्तहकीन घरानों में 10,000 रुपए फी खानदान के हिसाब से पे ऑर्डर्स की तकसीम की जिम्मेदारी अब असातिज़ा को सौंप दी गई। मुस्तहक घरानों को बजरिया मोबाइल फोन इत्तलाआत दी जा रही हैं। मोहल्ला घाड़ुआ वाला, भटिया वाला और रामा वाला के तकरीबन 100 घरानों में पे ऑर्डर्स तकसीम कर दिए गए। पे ऑर्डर्स की इमदादी रकूम निकलवाने के लिए रिटेलर्स शॉप्स कायम कर दी गई हैं, जहां से मुस्तहकीन इस्तेफादा कर रहे हैं। आपको एक यानी कि इंदराज हो जाएगा, उससे बाद टीचर हजरात के पास आपका लेटर पैड होगा। लेटर पैड के बाद वो आपको कॉल करें, कॉल करने से बाद आपको वसूल इस तरह का लेटर पैड वसूल होगा। वो आप बैंक ऑफ पंजाब या हमारी यानी कि शॉप से आके वसूल कर सकते हैं। ताहम मुतअद्दिद रिटेलर्स शॉप्स पर इंटरनेट सुस्तरवी का शिकार होने की वजह से रकूम की अदायगियों का अमल भी सुस्ती का शिकार है। पे ऑर्डर्स की रकूम दी बैंक ऑफ पंजाब से भी निकलवाई जा सकती हैं। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। यहाँ आपको बताएं कि सब्सिडी न मिलने पर माह सयाम में यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हो चुके हैं। चीचावतनी इंतजामिया की जानिब से आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। शहरी महंगी अशिया खुर्द खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं जुनेद मलिक से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचा वतनी में भी यूटिलिटी स्टोरों पर जो है वो सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है और माह सियाम का महीना जा रहा है और ना ही चीचा वतनी तहसील में रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी के एक यूटिलिटी स्टोर पर। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, आटा, चीनी और घी, वो इस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर आया हूँ यूटिलिटी स्टोर पे। जो बाहर के हालात है ना, उधर तो बहुत महंगाई है, इसलिए उधर से चीज़ें लेना हमारे लिए अफोर्ड करना मुश्किल आ रहा है। इसलिए हम आए थे यूटिलिटी स्टोर पे। हमने कहा चलो ये हुकूमत इसके सब्सिडी दी हुई है, लेकिन जब इधर पहुँचे तो इधर इस चीज़ की कोई सब्सिडी वाली कोई नाम की चीज़ नहीं है। इधर वैसे भी इधर आटा, चीनी, घी ये अवेल ही नहीं है, जो कि एक मेन चीज़ें हैं। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ों का अवेल करें और इस पे सब्सिडी दी जाए ताकि हम रोज़े आसानी से रख सकें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू को सुना। शहरी का कहना था कि हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है यूटिलिटी स्टोरों पर धक्के खाते हुए। जब हम आते हैं तो हुकूमत की जानिब से यहाँ पे सब्सिडी नहीं दी गई है और यहाँ पे जो आटा, चीनी और घी है वो भी मैसर नहीं है और इसलिए हम बाहर से चीज़ें लेने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना था कि माह सियाम के दिन जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कोई रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया गया चीचा वतनी में। उनका ये भी कहना था हम जब बाहर से चीज़ें खरीदते हैं तो वो मजबूरन हमें महंगी चीज़ें खरीदना पड़ती हैं। जी आपको बताएं कि घर का वाहिद कफील और 5 बच्चों का बाप माजूर होने के बायस गुर्बत की चक्की में पिसने पर मजबूर है। माजूरी के बायस अहले खाना की किफालत करना मुश्किल हो चुका है। माजूर बाप किसी मसीहे का इंतजार करने लगा। इसी पर देखते हैं कोट मोमिन से मोहम्मद तबस्सुम फारूक की ये रिपोर्ट। का बुच्चा कलां की जिना कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद इजाज जो कभी मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान का पेट पालता था, जिंदगी की बेरहम धारे में शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। 5 बच्चों का ये बाप एक मूजी मर्ज की लपेट में आकर दोनों टांगों से माजूर हो चुका है, जिसके बाद इसके लिए रोजगार कमाना मुमकिन नहीं रहा। मोहम्मद इजाज का कहना है कि बीमारी और माजूरी के बाइस वो इंतहाई किस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसके मासूम बच्चों का वाहिद सहारा वो खुद था, लेकिन अब मुआशी हालात मजीद संगीन हो चुके हैं। खानदान के अफराद और करीबी रिश्तेदार भी महदूद वसाइल की वजह से मुकम्मल तौर पर इसका साथ देने से कासिर हैं। साल हो गया मैं मंजी तय गया, निके निके मेरे बच्चे हैं, भूखे से रह रहे हैं, तो अल्लाह करे मेरी इमदाद होई बंजे। मेरा मीना कौन ठीक हो दिहाड़ी करदा ते साल हो गया, यकदम ही कोई बीमारी एक दो पहले बनेंगे काम करदा ते बीमार हो साल हो गया मंजी ते पे हुआ। छोटे छोटे साढ़े 5 बच्चे हैं नो ते लेकिन साढ़े 8 गमाड हैं सारे इमदाद करते हैं काफी। आप भी कम मैं कर दी इतना सैल नहीं साढ़े बच्चे पढ़ा सकिए, जो अगर कुछ कारोबार बना सकिए बच्चों पढ़ा सकिए, जो कोई भी हिसाब होंदा ते फिलहाल साढ़े को कोई इंदा चांस नहीं, मेहरबानी हो सकती है
साडी इमदाद की जाए जाए दा इलाज किया जाए। अहले इलाका ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से अपील की कि मोहम्मद इजाज की मदद की जाए ताकि इसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके और वो माजूरी के बावजूद बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। इसमें 1 साल हो गया जी मेहनत मजदूरी करता है, इस बीमारी की वजह से मंजी ते बह के बेचारे, इससे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें कोई कफालत करने वाला बंदा नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦਵਾ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ बेहतरीन निज़ाम चल जाए। ये इनको तकरीबन 1 साल हो चुका है, ये इस बीमारी में मुब्तला है, इनकी दोनों टांगें जो हैं वो तकरीबन माजूर हो चुकी हैं और हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो इन तक आएँ और इनकी मदद करें और इनका प्रॉपर इलाज करवाया जा सके। मोहम्मद इजाज की बहाली और माली इमदाद के लिए किसी भी फलाई इदारे या सरकारी सतह पर मदद के इकदामात नागुज़ीर हो चुके हैं। कैमरामैन खादम हुसैन कुरैशी के साथ मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज़, कोट मोमन। और अब खबर यह है कि ओकाड़ा की सरजमीन ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। ओकाड़ा के सपूत मलिक शफाकत अली ने नेचुरल मिस्टर पाकिस्तान का एजाज अपने नाम करके वतन अजीज का नाम भी रोशन कर दिया है। मजीद देखते हैं मोहम्मद आमिर तालिब की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा की सरजमीन ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। ओकाड़ा के सपूत मलिक शफाकत अली ने नेचुरल मिस्टर पाकिस्तान का एजाज अपने नाम कर लिया। इससे पहले भी इन्होंने पंजाब पुलिस की जानिब से नेशनल ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल्स कई बार हासिल किए और पंजाब पुलिस की जानिब से कई बार बैनुल अक़वामी सतह पर अपने वतन पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बैनुल अक़वामी सतह पर आला पोजीशनें हासिल की। इसमें चारों सूबों के लड़कों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने गोल्ड मेडल और अपने टाइटल अपने नाम किया है नेचुरल मिस्टर पाकिस्तान का। और इससे पहले जो मैंने अचीवमेंट मेरी थी, मैं पंजाब पुलिस से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने तकरीबन 2012 से लेकर 2018 तक इंटरनेशनल लेवल पर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने पुलिस के जवान को CC3 सर्टिफिकेट से नवाजा। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ खेलों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। इनमें से ही हमारा एक दरख्त सितारा जो है मलिक शफाकत, जो हमारा पुलिस लाइन में जिम है, उसका इंस्ट्रक्टर भी है। इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम महकमा पुलिस का बेशुमार प्लेटफॉर्म पे नाम रोशन किया, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शामिल हैं। 7 से 8 कंपटीशन नेशनल लेवल पे विन भी कर चुका है। बेशुमार इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पंजाब पुलिस की, ओकाड़ा पुलिस की नुमाइंदगी कर चुका है। तो हम इस तरह के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हमारे माथे का झूमर है, डिपार्टमेंट का एसेट हैं। इनके ऐसे एजाजात और काबिलियत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर तालिब, NTN न्यूज़, उकाड़ा। गोट की तारीख के हवाले से कदीम शहरों की फहरिस्त में शुमार होता है। इसी कदीम शहर में एक मस्जिद ऐसी भी है जिसकी तामीर और संग बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी। इस मस्जिद में सिंध के सूफी बुजुर्ग सैयद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इमामत भी की है। इसी पर मजीद देखते हैं घोटकी से राना इकबाल की ये रिपोर्ट। यूं तो घोटकी की तारीख 1427 साल पुरानी है। इस शहर का नाम सबसे पहले हदशाम, फिर दाहिरवाली और फिर जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो कहते हैं कि इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने इस मस्जिद नूर इस्लाम की बुनियाद रखी और फिर घोटकी में एक सूफी बुजुर्ग सैयद मुबारक अली शाह जिलानी की आमद हुई तो यहाँ की आवाम ने उनके तकद्दुस और एहतराम में इसका नाम लोहे साबान रखा। लेकिन वक्त सर यहाँ पर ज्यादा तादाद में बसने वाली कौम घोटा ने इसका नाम घोटा रखा और फिर ये तब्दील होता हुआ घोटकी बन गया। ये कदीमी मस्जिद नूर इस्लाम वाक़या जिसकी बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी। ये मस्जिद उस वक्त के कारीगरों ने मुकम्मल तौर पर लकड़ी से तामीर की, लेकिन वक्त सर लकड़ी खत्म होती गई और इसके नक्श और बुनियाद पर सीमेंट से मस्जिद की तामीर की गई। इस मस्जिद के 5 गुम्बद हैं। इन गुम्बदों के नीचे मस्जिद में दाखिल होने के लिए 5 ही गेट रखे गए हैं। मस्जिद की दीवारें आज भी उस दौर की तामीर शुदा हैं और आज भी सीढ़ियों पर लकड़ी के काम के निशान मौजूद है। मस्जिद के लिए इलाका मकीन कहते हैं कि इस मस्जिद में सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई भी इमामत कर गए हैं। जामा मस्जिद लोहे साबान घोटकी का तालिब इल्म, मैं यहाँ रहता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों के, हमारे वलियों की मस्जिद है और ये बहुत ही बड़ी कदीम मस्जिद है। यहाँ हमारे बाप दादा
लकड़दादा जो आते थे और यहाँ नमाज अदा किया करते थे। ये बहुत पुरानी जामा मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है। हमारे दादे ने नमाज पढ़ाई थी, इधर पढ़ते थे सारे। बहुत कदीमी आदमी भी आते हैं इधर नमाज पढ़ने, बड़ा सुकून आता है। भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह आया था इधर, बड़ा मदरसा था, अभी भी मदरसा चल रहा है। ये मस्जिद और इसकी बुनियादें बहुत पुरानी हैं। इस पर इस दौर में होने वाला काम तो अब नहीं रहा, सिर्फ अंदरूनी हिस्सा बचा है। बकिया लकड़ी से बनावट शुदा खत्म हो चुकी है, लेकिन इस मस्जिद में इबादत करते हुए हमें बहुत दिली सुकून मैसर होता है। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, NTN न्यूज़, घोटकी। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से